Good morning, students. Today we will understand chapter 2 of English textbook. The title is The Happy Prince. The Happy Prince is a story in which the writer has described the condition of a city where there are two class of people. One is poor class of people and second one is rich class of people. So there is a huge difference between both classes of society, and how they live their life, it is depicted through this story, and how poor are suffering and the rich are enjoying their life. This is depicted in this story. So let us start the story. The title of this story is The Happy Prince. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. Happy Prince, actually, this was the prince of that town. When he died, his statue was made between the city, in the center of the city, and it was fixed on a tall column. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. His body was covered with golden leaves, and for eyes he had two bright sapphires. To make the statue of Happy Prince, sapphires, it is a precious stone. Two bright sapphires were used to make the eyes of the statue of Happy Prince. And a large red ruby glowed on his sword hilt. Ruby is also a precious stone. It was used to make the sword hilt of the Happy Prince. हैप्पी प्रिंस उस टाउन का प्रिंस था. जब वो अलाइव था तो वो अपने पैलेस में रहता था, लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो उसको एक बड़े से कॉलम पे उसकी एक स्टेचू बना दी गई, और उसके जो बॉडी थी उसकी बॉडी को गोल्डन लीफ से कवर किया गया. यानी उसकी स्टेचू जो बनाई गई उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे ये गोल्ड से बनी हुई है. एंड फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सेफायर्स. उनकी आँखें ब्राइट सेफायर का यूज करके बनाई गई थी. ब्राइट सेफायर एक कीमती पत्थर होता है. एंड लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वर्ड हिल्ट. और उसके स्वर्ड हिल्ट के लिए रेड रूबी, ये भी एक प्रेशियस स्टोन होता है, उसका यूज करके बनाया गया था. He was very much admired indeed. He is as beautiful as a weathercock. He was very much admired means people were praising and the statue of Prince, and he was as beautiful as a weathercock. Weathercock that is used to show the direction of and as weathercock is beautiful, the same way the statue of Happy Prince was also beautiful. This remark was made by the town councillor, who wished to gain reputation for having artistic taste. Once town councillor was visiting the city, and when he passed through the street, he looked at the statue and he said these words, he is as beautiful as a weathercock. उस स्टेचू को weathercock के जैसा beautiful बता रहा है. Only not quite so useful, he added, fearing lest people should think him unpractical, which he really was not. वो उस स्टेचू की तारीफ़ करता है, और फिर वो नेक्स्ट लाइन में ये भी बोलता है, इट इज़ नॉट क्वाइट सो यूजफुल.
वेदर कॉक के जैसे उसको ब्यूटीफुल बताता है कि स्टैचू वेदर कॉक के जैसे ब्यूटीफुल लग रही है, बट वो उतनी यूजफुल नहीं है जितना वेदर कॉक होता है। वेदर कॉक तो एटलीस्ट डायरेक्शन शो करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इस स्टैचू का उतना यूज नहीं है। इस तरह से टाउन काउंसलर बोलता है। वाई कांट यू बी लाइक द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड अ सेंसिबल मदर ऑफ हर चाइल्ड, हर लिटिल बॉय who was crying for the moon. In previous paragraph you saw that a town councillor was praising the statue. Now in this paragraph, a mother whose child was crying for the moon, she makes him understand that why don't you be like happy prince, because happy prince never dreams of crying for anything. हैप्पी प्रिंस कभी किसी चीज़ के लिए क्राई नहीं करता, नहीं रोता है, तो तुम भी उस हैप्पी प्रिंस की तरह क्यों नहीं बनते। एक मदर अपने चाइल्ड को समझा रही है जब उसका चाइल्ड मून के लिए क्राई करता है। आई एम ग्लैड देयर इज़ समवन इन द वर्ल्ड हु इज़ क्वाइट हैप्पी, मटर्ड अ डिसअपॉइंटेड मैन एज ही गेज्ड एट द वंडरफुल स्टैचू। और अब यहाँ पे एक डिसअपॉइंटेड मैन की बात बताई गई है। दैट डिसअपॉइंटेड मैन व्हेन ही लुक्स एट द स्टैचू ही थिंक्स दैट एट लीस्ट इन दिस वर्ल्ड समवन इज़ हैप्पी। उसको ऐसा लगता है कि बाकी सब तो सैड ही हैं, जैसे आप जैसे रहते हैं आपको पूरा वर्ल्ड उसी तरह से दिखाई देता है। वो डिसअपॉइंटेड मैन था, उसको लगता था कि मैं अगर डिसअपॉइंटेड हूँ तो बाकी सब भी डिसअपॉइंटेड ही होंगे, सैड होंगे। बट जब वो हैप्पी प्रिंस को देखता है तो उसको लगता है एटलीस्ट कोई तो है जो हैप्पी है, क्योंकि उसकी स्टैचू भी ऐसी बनी थी कि उसको देख के ऐसा लगता था कि जैसे वो स्टैचू स्माइल कर रही हो। He looks just like an angel, said the charity children as they came out of the cathedral in their bright scarlet cloaks and their plain white pinafores. अब यहाँ इस पैराग्राफ में चैरिटी चिल्ड्रन की बात कही गई है। चैरिटी चिल्ड्रन जब वो कैथेड्रल से बाहर आते हैं, कैथेड्रल मीन्स बिग चर्च, when they come out from the church and they look at the statue, they also praise that he looks just like an angel, ये एंजल की तरह दिखता है। यानी जो भी उस स्टैचू को देखता है वही उसकी तारीफ़ करने लगता है। तो अभी हमने आपको बताया कि टाउन काउंसलर किस तरह से प्रेज करता है, और उसके बाद मदर अपने चाइल्ड को किस तरह से हैप्पी प्रिंस की तरह बनने के लिए समझाती है। एक डिसअपॉइंटेड मैन था, सैड था, वो भी जब इस स्टैचू को देखता है तो उसको लगता है कि कोई तो है इस वर्ल्ड में जो हैप्पी रहता है। और अब उन बच्चों के द्वारा तारीफ़ की जा रही है जो कैथेड्रल से बाहर आ रहे हैं। वो कहते हैं ही लुक्स जस्ट लाइक एन एंजल, ये एंजल की तरह दिखता है। देन मैथमेटिक्स टीचर आस्क्ड हाउ डू यू नो दैट दिस लुक्स लाइक एन एंजल, यू हैव नेवर सीन वन, तुमने तो कभी देखा नहीं होगा एंजल किस तरह से दिखता है। सो चिल्ड्रन आंसर्ड बट वी हैव इन आवर ड्रीम्स, रियल में तो नहीं देखा बट इन आवर ड्रीम्स वी हैव सीन। एंड द मैथमेटिक्स मास्टर फ्रॉन्ड एंड लुक्ड वेरी सिवियर फॉर ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ चिल्ड्रन ड्रीमिंग। और जब बच्चों ने बोला कि वी हैव सीन इन ड्रीम्स, तो मैथमेटिक्स टीचर एंगर शो करते हैं, ही फ्रॉन्ड एंड लुक्ड वेरी सिवियर, वो एंगर शो करते हैं, बच्चों के ऊपर गुस्सा दिखाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बच्चे ड्रीम करें, इमेजिनेशन में रहें। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो, और उसी एक दिन रात में एक स्वेलो बर्ड उस सिटी में उड़ते हुए आता है। नाउ द एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अ स्वेलो बर्ड comes in the city one night. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before.
the friend of swallow birds, have gone to Egypt. Egypt is a name of place, but he had stayed behind. Only this swallow, who just came in the city, only he was staying here, and other swallow birds had gone to Egypt. For he was in love with the most beautiful reed. Why did he stay there? Because he was fallen in love with the reed. Reed is a kind of grass. It usually grows near the rivers and lakes. So this swallow bird who has stayed here, it fell in love with reed, that grass, and that's why he did not go. He had met her early in the spring as he was flying down the river after yellow moth. How did he meet the reed? The swallow bird met reed when he was chasing a yellow moth. Moth, it is a kind of insect. एक इंसेक्ट को चेज कर रहा था वो swallow bird, और उसी को चेज करते करते उस रीड के पास पहुंच गया था. और जैसे ही वो रीड को देखा, एंड हैड बीन सो अट्रैक्टेड बाय हर स्लेंडर वेस्ट दैट ही हैड स्टॉप्ड टू टॉक टू हर. और जैसे ही वो देखता है उस रीड को, बिकॉज ऑफ हर स्लेंडर वेस्ट, स्लेंडर मीन्स थिन, वेस्ट मीन्स कमर, एज ही looks the slender waist of the reed, he stopped there and he stopped chasing the moth and started talking to her. Shall I love you? said the swallow. Swallow उस reed से बोलता है, shall I love you? Who liked to come to the point at once. Swallow bird does not want to waste time, and directly he comes to the point and asks for love, and the reed made him a low bow. And और जब हवा चली तो रीड, बिकॉज इट वाज अ ग्रास थोड़ा सा हिली, तो उसको ऐसा लगा एज इफ दैट रीड इज एग्री, इट इज एक्सेप्टिंग द लव प्रपोजल ऑफ swallow bird. सो ही फ्लू राउंड एंड राउंड हर, और अब वो swallow bird उसी के आसपास उड़ने लगा, टचिंग द वाटर विद हिज विंग्स एंड मेकिंग सिल्वर रिपल्स. उस वाटर को टच करते हुए वो वहीं पे उड़ने लगा, और बिकॉज ऑफ द टचिंग ऑफ द विंग्स, द रिपल, छोटी छोटी जो लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं पानी में वाइब्रेशन की वजह से जो उठती हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिपल. तो वो रिपल उठने लगी उस वाटर से. दिस वॉज हिज कोर्टशिप, और इस तरह से वो अपना कोर्टशिप, अपना लव शो करता था उस रीड के प्रति. एंड इट लास्टेड ऑल थ्रू द समर, एंड होल समर इन दैट सीजन दिस टाइप ऑफ कोर्टशिप वॉज गोइंग ऑन बिटवीन रीड एंड द swallow bird. Other swallows twittered that it is a ridiculous attachment. She has no money and for too many relations. And indeed the river was quite full of reeds. जो अदर swallow birds थे उन्होंने बोला, it is a ridiculous attachment. This attachment is not fit because this is swallow, this is a bird, and other one with whom he has fallen in love, that is a grass. So this is a not good attachment. So she, and even she has no money, उस रीड के पास कोई मनी भी नहीं है. एंड रिलेशंस बहुत सारे हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे रीड्स ग्रोन अप थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके बहुत सारे फैमिली हैं और बहुत सारे रिलेशन हैं. अदर swallow bird ऐसा बोल रहे थे. Then when the autumn came, they all flew away. You know that in winter season many birds and animals migrate from one place to another place in order to save their life, because of the cold they cannot bear,
the season, and they go to other parts of the earth where they can save themselves from the cold. So all the swallow birds went when autumn came. Where they went? They went to Egypt. And only this swallow bird remained there. After they had gone, he felt lonely. This swallow bird felt lonely when his friends gone to Egypt, and began to tire of his lady love. She has no conversation. He said. Who has no conversation? The reed, because grass was not talking to swallow bird. So he says that she has no conversation, she does not talk to me, and I am afraid that she is a coquette. Coquette means a female who cheats man. That lady is called coquette. So here swallow bird says that this reed is a coquette because it is not talking with me. For she is always flirting with the wind. ककेट क्यों बोलता है उसको? क्योंकि जब भी विंड चलती है, हवा बहती है, तो वो थोड़ा सा हिलती डुलती है, उसके अलावा वो एकदम शांत खड़ी रहती है, उस स्वैलो से बात नहीं करती। तो उसको ऐसा लगता है जैसे ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो, मतलब बिकॉज ऑफ विंड इट इज़ फ्लर्टिंग एंड दैट्स वाई शी इज़ ककेट। And certainly, whenever the wind blew, the reed made the most graceful courtesies. जब हवा चलती है तो रीड हिलती है, वो कोर्टसी ऐसा लगता है कि जैसे वो भी अपना लव शो कर रही हो। I admit that she is domestic, he continued, but I love travelling and my wife consequently should love travel also. लव ट्रेवलिंग आल्सो। वो बोलता है swallow bird, बिकॉज आई लव ट्रेवलिंग सो माई वाइफ शुड आल्सो लव ट्रेवलिंग, उसको भी ट्रेवलिंग करनी चाहिए। लेकिन वो रीड वहाँ से हिलने को तैयार नहीं थी, बिकॉज इट वॉज स्टिक टू द ग्राउंड। सो दैट्स वाई swallow bird सेज दैट सी इज़ डोमेस्टिक, वो यहीं पे रहना चाहती है, वो अपनी जगह से दूर नहीं जाना चाहती। सो विल यू कम अवे विद मी, ही सेड फाइनली टू हर। अब उससे रहा नहीं गया swallow bird से, तो वो फाइनली उससे पूछता है कि तुम फाइनली मुझे बता दो कि मेरे साथ चलोगी या नहीं चलोगी। बट वो ग्रास कैसे जाती वहाँ से? बट द रीड सूक हर हेड, हवा थोड़ी सी चली उसी टाइम पे और वो रीड थोड़ा सा हिली, तो ऐसा लगा कि जैसे वो मना कर रही हो। शी वॉज सो अट्रैक्टेड टू हर होम, वो उस जगह से नहीं जाना चाहती थी। यू हैव बीन ट्रिफलिंग विद मी, ही क्राइड। द swallow bird cried that you have been trifling with me, means you have cheated me and I am off to the pyramid, goodbye. I am going to the pyramid of Egypt and he bade goodbye, उसको goodbye बोलता है और वहाँ से चला जाता है। He flew away. All day long he flew and at night time he arrived at the city. पूरा दिन वो फ्लाई करता है और नाइट में उसी सिटी में वो पहुँचता है जिस सिटी में हैप्पी प्रिंस का स्टेचू बना रहता है। और अब वो रात में स्टे करने को सोचता है और अब खुद से ही सोचता है, वेयर शैल आई पुट अप, वेयर शुड आई स्टे, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। व्हेन ही लुक्स द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, he thought that there is a preparation, this town has made preparation to stay for me. Then he saw the statue on the tall column, I will put up there, I will stay there on the statue. Then he cried, it is a fine position with plenty of fresh air, because this is very high and here I can get fresh air also. So he alighted just between the feet of the happy prince.
So there was a little space between the feet of Happy Prince. There only the swallow bird stayed. उसके दोनों पैरों के बीच में जो थोड़ी सी जगह थी, वहीं पे उसने अपने आप को अलाइट किया. अलाइटेड मीन्स स्टेड. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round and he prepared to go to sleep. As he started sleeping, as he was going to sleep, just then he thought that I have a golden bedroom, because that statue was made of gold. So swallow bird thinks that this is a golden bedroom and he prepares to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. But जैसे ही वो सोने के लिए सोचता है और अपना हेड अपने विंग के अंदर छुपाता है, बर्ड्स जो होती हैं वो अपना हेड अपने विंग में रख के, उसके अंदर रख के सोती हैं. तो जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है, a large drop of water fell on him. एक बड़ी सी बूंद पानी की उसके ऊपर गिरती है. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud on the sky. Sky was clear and there was no cloud in the sky. Then from where this water is falling, he thinks. The north of Europe is really the climate in the north of Europe is really dreadful. उसको ऐसा लगता है कि जो क्लाइमेट है यूरोप का, नॉर्थ यूरोप का, ये ड्रेडफुल है, बिकॉज देयर इज़ नो क्लाउड इन द स्काई इवन देन वाटर इज फॉलिंग. द रीड यूज टू लाइक द रेन, बट दैट वॉज मेरली हर सेल्फिशनेस. देन अनदर ड्रॉप फेल. वो ऐसा सोचता रहता है, उसको रीड की याद आ जाती है. वो कहता है कि रीड यूज टू लव रेन. मेरे रीड को रेन अच्छा लगता था. बट सी इज़ वेरी सेल्फिश. एट द सेम टाइम अनदर ड्रॉप फेल. तभी एक और ड्रॉप उसके ऊपर पानी की गिरती है, उस बर्ड के ऊपर. वाट इज़ द यूज ऑफ ए स्टेच्यू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ. अगर ये रेन से मुझे नहीं बचा सकती तो ये स्टेच्यू किस काम की. ऐसा वो स्वैलो बर्ड सोचता है. आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट. I should search for another place. And he determined to fly away. वो अब ये डिसाइड कर लेता है, डिटरमिन कर लेता है कि अब मैं यहाँ से जाऊँगा और किसी अच्छे चिमनी पॉट के नीचे रेस्ट करूँगा. यहाँ इस स्टैचू के नीचे पानी गिर रहा है और यहाँ मैं स्लीप नहीं कर पाऊँगा. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw. What did he see? At the same time, when he was determined to fly away, at the same time, a third drop of water fell on swallow bird, and he looked up. ऊपर की ओर देखता है और कहता है, what is he? What did he see? अब वो क्या देखता है, वो सरप्राइज्ड हो जाता है. The eyes of the happy prince were filled with tears. जो वाटर उसके ऊपर ड्रॉप हो रहा था, वो एक्चुअली that was not water but it was tears of happy prince. हैप्पी प्रिंस की आंख से आंसू बह रहे थे. And tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. उसका फेस बहुत ही अच्छा लग रहा था. स्वैलो बर्ड को उसके ऊपर दया आ गई. ही फेल्ट पिटी. उसको दया आ गई. ही सेड, हु आर यू? स्वैलो बर्ड आस्क्ड हैप्पी प्रिंस दैट हु आर यू. देन द प्रिंस रिप्लाइड दैट आई एम द हैप्पी प्रिंस. देन स्वैलो बर्ड अगेन आस्क्ड, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी. तुमने मुझे भिगा दिया, गीला कर दिया. बिफोर दिस ही आस्क्ड, व्हाई आर यू वीपिंग देन? अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो वीप क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे ड्रेंच कर दिया, भिगा दिया है. व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, आंसर्ड द स्टैचू. जब स्वैलो ने क्वेश्चन किया कि तुम कौन हो, रो क्यों रहे हो, तुमने मुझे
ड्रेंच कर दिया। तो हैप्पी प्रिंस रिप्लाइड दैट व्हेन आई वाज अलाइव, जब मैं ज़िंदा था, सो और मेरे पास ह्यूमन हार्ट था, सो आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर। तो टीयर्स क्या होता है ये मुझे पता ही नहीं था। आई नेवर वेप्ट फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस ऑफ सेंट सोजी वेयर सारो इज नॉट अलाउड टू एंटर। आई वॉज लिविंग इन अ पैलेस in the palace of Saint Soji, and there sorrow was not allowed to enter because everyone was happy there, no one was weeping there. So I did not know what is sorrow and what is tear. And in the daytime I played with my companions in the garden, and in the evening I led the dance in the great hall. डे टाइम में मैं गार्डन में अपने कंपेनियंस के साथ खेला करता था, एंड इवनिंग टाइम में मैं उस ग्रेट हॉल में वेयर डांस यूज टू हैपन, उस ग्रेट हॉल में मैं डांस को लीड किया करता था और पूरे टाइम मैं इंजॉय किया करता था। और मुझे पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है और आंसू क्या होते हैं, ये मुझे नहीं पता था। अराउंड द गार्डन रैन अवे लॉफ्टी वॉल, उस गार्डन के चारों तरफ एक बहुत ऊंची सी दीवार थी, बट आई नेवर केयर टू आस्क व्हाट ले बियॉन्ड इट, बट आई नेवर आस्क्ड एनीवन दैट व्हाट इज़ बियॉन्ड दिस वॉल। इस वॉल के उस तरफ क्या है, कौन लोग रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, मैंने कभी पूछने की, जानने की कोशिश नहीं किया। दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। Everything about me was so beautiful. My courtiers called me the happy prince because I was looking always happy. That's why my courtiers used to say me the happy prince. And happy indeed I was. And really I was very happy. If pleasure be happiness, if you say pleasure happiness, अगर तुम pleasure को happiness मानते हो तो I was happy. Pleasure means because of any activity and because of anything, if you smile, if you enjoy, that is called pleasure. This is for a short moment, but happiness, it is for a long moment. When you are satisfied with something and your soul feels peace, that is called happiness. So ये बोलता है स्टैच्यू कि अगर प्लीजर को हैप्पीनेस कहा जा सकता है तो आई वॉज रियली हैप्पी, सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। मीन्स मैं जब तक जीवित था तब भी हैप्पी था, और जब मेरी डेथ हुई उस वक्त भी मैं हैप्पी ही था। एंड नाउ दैट आई एम डेड, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी ऑल द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरीज ऑफ द सिटी। जब मेरी डेथ हो गई तो लोगों ने मुझे इस इतने ऊपर इस कॉलम पे रख दिया है, और यहाँ से मुझे इस पूरे सिटी की मिजरीज, उनकी प्रॉब्लम, लोगों की सफरिंग दिखाई दे रही है। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई कांट चूज बट वीप। और बिकॉज माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, मेरा हार्ट लेड से बना है, कांच से बना है। एंड आई कैन नॉट चूज बट वीप, आई कैन ओनली वीप बट आई कैन नॉट हेल्प पीपल बिकॉज आई एम ए स्टेचू, आई एम फिक्सड ऑन दिस कॉलम, आई कैन नॉट गो टू हेल्प देम, आई कैन ओनली सी द सफरिंग ऑफ द पीपल एंड आई कैन ओनली वीप। What is he? Not solid gold, said the swallow to himself. swallow को ये लगता है क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है, क्योंकि ये प्रिंस बोल रहा है जिस तरह से, उसको ऐसा लगने लगा कि ये पूरा गोल्ड से नहीं बना है। पहले तो उसे लगा था, जब फर्स्ट टाइम वो वहाँ पे पहुँचा और देखा तो उसको लगा कि ये पूरा गोल्ड से बना हुआ है। लेकिन जब प्रिंस उसको बताने लगता है कि मेरा हार्ट लेड से बना हुआ है, तब उस स्वैलो बर्ड को डाउट होता है कि ये लगता है कि सॉलिड गोल्ड नहीं है, पूरा का पूरा गोल्ड से बना हुआ नहीं है।
ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क आउट लाउड, बट कोई कमेंट नहीं करता, उससे ये बात नहीं बताता, सिर्फ इससे नहीं पूछता है, सिर्फ अपने आप में उसको वो ऐसा सोचता है। Continued the statue in a low musical voice, far away in a little street there is a poor house। अब जो भी सफरिंग देख रहा था हैप्पी प्रिंस, वो उस स्वेलो बर्ड से नरेट करता है, उसको बताता है कि फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस। पुअर हाउस इट इज़ अ काइंड ऑफ हट। पुअर हाउस यानी जो बहुत अच्छा घर नहीं है, बट एक हट की तरह है, उसके लिए पुअर हाउस वर्ड यूज किया है। सो एक स्ट्रीट में मैं एक पुअर हाउस को देख रहा हूँ। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल। वहाँ पर एक वुमन एक टेबल पे बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स। उस वुमन का फेस थिन है, शी इज वॉर्न मीन्स मुरझाया हुआ है। शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, उसके हैंड्स रफ हो चुके हैं और रेड कलर के हो गए हैं। बिकॉज हो सकता है कि उसको कुछ लग गया हो हाथ में उसके, वो रेड दिखाई दे रहा था। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल्स फॉर शी इज स्टिमेसेस। यस, नीडल से प्रिक हो गया था उसका हैंड, सुई चुभ गई थी उसके हाथ में। बिकॉज शी वॉज सीमस्ट्रेस मीन्स दैट वुमन हु सीव क्लॉथ्स, जो कपड़े वगैरह सिलती है उसको सीमस्ट्रेस बोलते हैं। तो उसके हाथ में सुई चुभ गई थी, जिसकी वजह से उसके हाथ से ब्लड बाहर आ रहा था और उसका हैंड रेड दिख रहा था। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग पैसन फ्लावर्स ऑन सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर to wear at the next court hall। She was seeing the class, she was embroidering। एम्ब्रॉयडरी का मीन्स होता है किसी कपड़े पे जो कढ़ाई वगैरह की जाती है, उसको एम्ब्रॉयडरी वर्क बोलते हैं। तो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी क्वीन के लिए, जो लेडी डांस करने वाली थी, उस डांसिंग गर्ल के लिए वो कपड़े बना रही थी, सीमस्ट्रेस। In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. And in the same house, in the corner, the boy of the seamstress was lying and he was ill. He has a fever and is asking for oranges. उसको फीवर है उस बॉय को और वो ऑरेंज मांग रहा है। His mother has nothing to give him but river water। उस मदर के पास अपने चाइल्ड को देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ रिवर वाटर ही वो दे सकती है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास। सो ही इज़ क्राइंग, और वो बॉय रो रहा है। ये सारी चीज़ें हैप्पी प्रिंस देख रहा था वहाँ से, और ये स्वेलो बर्ड को बताता है। और फिर वो बोलता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वर्ड हिल्ट। क्या तुम मेरे स्वर्ड हिल्ट से वो रूबी निकाल के उस सीमस्ट्रेस को दे सकते हो। माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव बिकॉज आई एम फर्मली फिक्सड ऑन दिस पेडेस्टल। इस चबूतरे पे मुझे इस तरह से फिक्स कर दिया गया है कि मैं मूव नहीं कर सकता। कैन यू हेल्प मी एंड टुक आउट द रूबी द प्रीसियस स्टोन फ्रॉम माई स्वर्ड हिल्ट एंड कैन यू गिव इट टू द सीमस्ट्रेस। I am waited for in Egypt, said the swallow. But Swallowbird said, I cannot help you because my friends are waiting for me in Egypt and I am going to Egypt. I have no such time. My friends are flying up and down the Nile and taking to the large lotus flower. मेरे फ्रेंड उस नील रिवर के पास फ्लाई कर रहे होंगे और वो लोटस फ्लावर के आसपास घूम रहे होंगे। Soon they will be going to sleep in the tomb of the great king। वो अभी किंग के टॉम में जाके वो स्लीप करेंगे। The king is there himself in his painted coffin। वहाँ एक किंग का की डेड बॉडी को पेंटेड कॉफिन, उसमें कफन में
लपेट के रखा गया है। ही इज़ रैप्ड इन येलो लिनन में एंड एम्बॉम्ड विद स्पाइसेस, मम्मी लगा के, स्पाइसेस यहाँ पे मम्मी के लिए यूज किया गया है, जैसे डेड बॉडी के ऊपर मम्मी लगा के सम स्पेशल काइंड ऑफ स्पाइसेस उसको रख दिया जाता है, तो वो बहुत सालों तक सेफ रहता है, वो बॉडी जो है तो ख़राब नहीं होती। तो वो बताता है स्वैलो बर्ड कि मेरे फ्रेंड वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं उस ग्रेट किंग के टॉम पर। राउंड हिज नेक ए चेन ऑफ पेल ग्रीन जेड, उस किंग के बारे में बता रहा है कि उसके नेक के राउंड पेल ग्रीन जेड ग्रीन कलर का चैन पहना हुआ है। एंड हिज हैंड्स आर लाइक विदर्ड, एंड उसके जो हैंड्स है विदर्ड हैं, दैट वाज मतलब मुरझाया हुआ। विदर्ड लीव, जिस तरह से विदर्ड लीव होती है उस तरह से उसके हैंड हैं, वो उसका डिस्क्रिप्शन देने लगता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी फॉर वन नाइट, क्या तुम एक रात के लिए मेरे पास नहीं रुक सकते। एंड बी माई मैसेंजर, और मेरे मैसेंजर बन जाओ, मीन्स वट एवर आई गिव यू, यू टेक इट टू देयर एंड गिव टू द पीपल होम आई से। द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, वो बॉय जिसको मैं देख रहा हूँ उस हाउस में वो बहुत थर्स्टी है, क्या तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, लेकिन वो स्वैलो बर्ड कहता है आई डोंट लाइक बॉयज़ बिकॉज लास्ट समर व्हेन आई वाज स्टेइंग ऑन द रिवर देयर वर टू रूड बॉयज़। लास्ट समर में जब मैं रिवर के पास था तो वहाँ पे दो रूड बॉयज़ थे। द मिलर सन, वो उस मिलर के सन थे। हु वर ऑलवेज थ्रोइंग स्टोन्स एट मी, वो मुझे पत्थर से मारा करते थे। दे नेवर हिट मी ऑफ कोर्स, वो मुझे मार तो नहीं पाए। वी स्वेलो फ्लाई फार टू वेल फॉर दैट, एंड बिसाइड आई कम ऑफ अ फैमिली फेमस फॉर इट्स एजिलिटी, क्योंकि हम स्वेलो बर्ड एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो अपनी एजिलिटी के लिए फेमस है। एजिलिटी मीन्स हम बहुत जल्दी क्विकली मूव कर जाते हैं। तो उसने मेरे ऊपर जब स्टोन से हिट किया तो मैं तो उड़ गया, वो मुझे मार नहीं पाया, लेकिन उसने मारने की कोशिश किया था। दैट्स वाई आई डोंट लाइक बॉयज़ बट स्टिल इट वॉज मार्क ऑफ डिसरिस्पेक्ट, बट ये मेरा डिसरिस्पेक्ट तो था ही, उसने मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया और मेरे ऊपर स्टोन थ्रो किया, इसलिए मैं बॉयज़ को लाइक नहीं करता। एंड सो आई कैन नॉट हेल्प दैट बॉय। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said. लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना सैड दिख रहा था कि स्वैलो बर्ड को उसके ऊपर दया आ गई। कहता है इट इज़ वेरी कोल्ड हियर बट आई विल स्टे विद यू फॉर वन नाइट एंड बी योर मैसेंजर, लेकिन एक रात के लिए मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा और तुम्हारा मैसेंजर बन जाता हूँ। ऑल्दो हियर देयर इज़ वेरी मच कोल्ड। थैंक यू लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। जब स्वैलो बर्ड रुकने के लिए रेडी हो जाता है तो हैप्पी प्रिंस उसको थैंक यू बोलता है इस बात के लिए कि वो एक रात रुकने के लिए रेडी हो जाता है।